अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि भगवानपुरा के इलाके में एक कब्रिस्तान से नामालूम लड़की की लाश मिलती है। गर्दन कड़ी लाश, उसके बारे में तफसीलात पुलिस को बाद में मालूम होती हैं कि उसको ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके साथ गैंग रेप भी किया गया। गैंग रेप करने वाले कौन थे और कत्ल करने की वजह क्या बनी, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इस केस के बारे में आपको सारी तफसील बताई। चंद रोज़ पहले थाना भगवानपुरा की हदूद में एक कब्रिस्तान है जहाँ पे गला कटी हुई एक 14 से 15 साल लड़की की लाश मिलती है। जब ये लाश मिलती है तो पुलिस नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेती है। ना तो इस लड़की की शनाख्त हो पाती है और ना ही किसी किस्म का मुलजिम का कोई सुराग लगता है। इसकी जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो पता ये चलता है कि कत्ल करने से पहले, यानी कि गला काटने से पहले, इस लड़की को जो है ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया, गैंग रेप किया गया। 4 से 5 अफराद थे जिन्होंने इसके साथ गैंग रेप किया। उसी लड़की की दादी है और बहनें हैं हमारे साथ। मामला क्या है, कैसे ये घर से लापता होती है। महमूद बूटी का इलाका है जहाँ की ये लड़की रहने वाली थी। क्या हुआ, कातिल कौन थे और कत्ल की वजह इनको क्या मालूम है, आगे चल के हम पुलिस का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। पहले सबसे आपको जो लवाहकीन है लड़की के उससे बात करवाते हैं। माँ जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरे ने सरिया बीबी बेटा। अच्छा, हाँ जी। की लगदी सी नगीना मेरी ਤੁਹਾਡੀ? पोती सी पुत्र। पोती सी हाँ ਤੁਹਾਡੀ? जी मेरी पोतरी है। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? होया कि पुत्र माड़े लोग मंग मंग खाने पुत्र जगात लैन गई है। ज़कात लैन गई? जगात कहंदे तैनूं लैनी ते साडे घर आ जा जगात। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ बच्ची नूं? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ? पता नहीं ਅਸੀਂ नहीं जानते बंदियां नूं। ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਸਤੀ ਕੀਤੀ। 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾ ਇਹਦਾ, ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਆਸਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ? ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਨੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਗਰਦਨ ਸਾਰੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਆਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15 ਸਾਲ ਦੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਵਾਲਦ ਦਾ ਜਨੀ ਤਵਾਜ਼ਲੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਮਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗੀਨਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਗੂਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਜੂਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਜੂਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਦੂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਡਰਨੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਤੋ ਬੁਸ਼ਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਆ? ਇਹ 4 ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਅਕਸਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ? ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਭੈਣ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਨੀ ਆ ਆਪ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਕਮਾਨੀ ਹਾਂਜੀ? ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੇਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, 10 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਸਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਖੋ ਫਿਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ? ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਹੀ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੈ? ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਰਾਫ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? राफ। राफ। ਹਾਂਜੀ। बेटा पकड़ो ये माइक। सर जी हमें तो इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी बहनों को मारा है ऐसे इनको भी मारना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि आपसे कितना बड़ी थी वो बहन? आप 1 साल। 1 साल बड़ी थी? जी। आपकी दादी जो है वो बता रही हैं जो कुछ कि वो कभी घर से चली जाती थी, तो कहाँ जाती थी वो? यही बहना के घर में या पुप्पो के घर में। पुप्पो के घर में? हाँ। तो उस दिन क्या हुआ था? कितने दिन बाद आपको पता चला है कि? हमें तो 2 दिन बाद पता चला है। 2 दिन बाद कैसे पता चला था? हमने तो ये समझा कि वो बड़ी बहना के घर में चली गई होगी। अच्छा, बड़ी बहन आ गई, करीब रहती है? जी। तो 2 दिन बाद आपने पता किया उसका? सर जी नहीं, 2 दिन बाद पता नहीं हमने किया। अच्छा। तो तो फिर ये हमें तो बताओ किसी कि ने तस्वीर आके दिखाई थी। अच्छा, तस्वीर दिखाई थी। तो ये बताओ कि उसके सर में जो है वो उसके बाल भी कटे हुए थे? सर जी उसके सर में जुए थे। अच्छा, खुद कटवाए थे बाल? हाँ जी। तो वो कोई दवाई ऐसी खाती थी, कोई मेडिसिन खाती थी नहीं, जिसकी नहीं। वजह से वो लगता था कि? नहीं नहीं सर जी। ज़हनी तौर पे वो ठीक थी? नहीं, वो उसका ज़हन थोड़ा सा पागल था। थोड़ा सा था? क्या क्या करती थी? वो ज़हन कैसे? पागलों वाली थोड़ी सी हरकतें करती थी, उसका ना ज़हन इतना काम नहीं क्या था करता। हरकतें करती थी? अकेली बैठी रहती थी, अकेली बातें करती रहती थी। अच्छा। कोई भी उसको बुलाता था, कोई जवाब नहीं थे देती। अच्छा। फिर? तो वो जिस दिन गई है ना, उस दिन वो ये बोल के गई कि बहना मैं रोटी लेके आती हूँ फिर खाते हैं। अच्छा, रोटी लेने गई थी? जी सर। तो रोटी लेके फिर वापस नहीं आई, फिर 2 दिन बाद आपको पता चला? जी। अच्छा, ये बताओ कि जब उसकी बॉडी आई है तो उस पर कितने निशान थे जख्म के? सर जी कितना मारा हुआ था? हमने नहीं देखी, हमने सिर्फ एक पिक्चर देखी थी उसकी। उसकी ना गर्दन साड़ी काटी हुई थी। गर्दन काटी हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहना ने कभी कहा था आपको कि कोई तंग करता है उसको या कोई उसको नहीं सर। ऐसे मार सकता है? कभी उसने कहा आपको? नहीं, हमारे साथ तो उसने कभी कोई इस किस्म से बात की ही नहीं। कभी नहीं उसने की? कोई नहीं। नशा वगैरह कोई नहीं करती थी? नहीं नहीं सर। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌन नहीं, कोई है ही नहीं। अच्छा, अब आप कहती हैं इंसाफ होना चाहिए, जी सर। तो इंसाफ कैसे होगा? सर जैसे हमारी बहना को मारा ऐसे इनको भी मरना चाहिए। तो आपकी अम्मी क्यों आपको नहीं मिलती हैं? सर वो वैसे उन्होंने छोड़ दिया हमें, जब हम छोटे से थे तभी हमें छोड़ दिया, उन्होंने शादी दूसरी कर शादी ली? कर ली। अच्छा, दूसरी शादी कर लिया। और आपके वालिद आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी अंकल जी, उनका भी ज़हन नहीं ना ठीक है। उनका भी ज़हन नहीं ठीक है।
उनके ज़हन को क्या हुआ है, जैसे बहना हरकतें करती थी नहीं वैसे? नहीं, वो तो मामा की वजह से कुछ पागल थे और अब कुछ बहना की टेंशन में हो गए हैं ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। ये दो घर वाले थे जिसमें एक दादी है और एक छोटी बहन है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक ये कहती है कि जो मकतूला थी नगीना, वो मंशियात की आदी थी और जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो भी मंशियात के आदी थे। और डेड बॉडी जिस तरह से गला कटा हुआ और लावारिस लाश कब्रिस्तान में मिली, उसके बाद कई रोज़ तक पुलिस को यही नहीं शनाख्त हो सकी कि इस लड़की का नाम क्या है, इसका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है और ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। फिर पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया, कुछ सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो तमाम चीज़ें सामने आई और बिल आखिर 5 मुलजमान जो हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं, जो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की पहले, फिर उसका गला काटा और कुछ जादू टोने के हवाले से वो भी बयानात देते हैं। वो बयानात क्या हैं, पुलिस को उन्होंने वो बयानात दिए हैं, वो हम आपको पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इस ब्लाइंड मर्डर के हवाले से जो नगीना नामी 15 साला लड़की थी, किस तरह से कत्ल हुई, लवाकिन दादी और बहन ने हमें सारी तफसील बताई। था ब्लाइंड मर्डर और लाश की शनाख्त जो है वो पुलिस की यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी बड़ी मुश्किल से की। किस घर से उसका ताल्लुक़ था, कौन से ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था, किस तरह से ये पता लगा, ये सारा कुछ हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागवानपुरा मुर्तज़ा है हमारे साथ, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि एक ऐसा कत्ल जिसका कोई सुराग नहीं था, जिसको ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल से पहले उसको ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा मुतहरिक हुए, उन्होंने टास्क दिया एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन को, फिर टीमें बनी, उसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागवानपुरा ने मुलजमान को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि वो आला कत्ल और वो तमाम चीज़ें भी बरामद कर ली हैं। किस तरह से तफ्तीश के मराहिल शुरू हुए, किस तरह से इनको क्लू मिला और मुलजमान ने कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी, ये हम सब कुछ जानते हैं मुर्तज़ा साहब की ज़ुबानी। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा साहब, ब्लाइंड मर्डर था बिल्कुल, और पहले तो लड़की की शनाख्त ना हुई कि किस तरह से इसको कत्ल किया गया और कौन कत्ल करने वाले लोग थे, कैसे इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है, ज़रा तफसील बताइएगा। शेख साहब, हमें 23 तारीख को ना रमज़ानुल मुबारक में सुबह 8 बजे के करीब 15 पे कॉल मसूल होती है कि इधर हमारे एरिया में एक शागोर पीर कब्रस्तान है, वहाँ पे एक लड़की है नामलूम जिसकी एज कुछ 16-17 साल होगी, उसकी शारक कटी हुई है और डेड बॉडी उसकी कब्रस्तान में पड़ी है। ठीक, हम मौके पे पहुंचते हैं, मौके पे जाके हमें लड़की के पास से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये लड़की कौन है और किधर से, क्या नाम है, शनाख्त क्या है इसकी? उसकी शनाख्त नहीं हो पाती। हम जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें बुलवाते हैं, कोई ऐलान वगैरह करवाते हैं करीबी मसाजिद में, लेकिन हमें कोई बंदा हेल्प आउट नहीं करता इस मामले। उसके बाद कब्रस्तान के जो एंट्री एग्ज़िट गेट हैं वो तकरीबन 5 से 6 होते हैं। अच्छा। उनमें से 2-3 ऐसे गेट थे जिनको एक डॉक्टर की दुकान पे लगा कैमरा कवर कर रहा था। ठीक है। उनकी हमने 24 घंटे की वीडियो देखी, वीडियो से हमें 2 बंदे सस्पेक्ट मालूम हुए। उन 2 बंदों का हमने पता करना लोकल इंफॉर्मेशन के ज़रिए उनका पता किया और उन्हें गिरफ़्तार किया। उनमें से एक बंदा गिरफ़्तार होता है जो हमें सारी स्टोरी बताता है कि ये जी महमूद बूटी के पास एक करीब ही एक ब्रोथल हाउस है, वहाँ से हम 2 बंदे इस लड़की को लेके आए थे आसफ पार्क में, आसफ कॉलोनी में एक पार्क है वहाँ पे लेके आए थे। वहाँ पे इनके ब्रोथल हाउस से मुराद आपकी के वहाँ कबा खाना, ठीक है। वहाँ से लेके आते हैं और वो बंदा जो हम सबसे पहले अरेस्ट करते हैं वो हमें बताता है कि जी हम 2 लोग थे जो इसे लेके आए हैं, और फिर पार्क में हमारे 3 साथी और थे, हम 5 लोग हो गए। हमारे साथियों में से एक है जिसका नाम है फैज़ान। ठीक, फैज़ान हमें कहता है कि जी पास ही मेरा घर है, तो ऊपर वाले पोर्शन में मैं अकेला ही होता हूँ, आप इसे उधर ले आओ। ये सारे मुल्ज़मान उसे उधर लेके चले जाते हैं। वहाँ पे ले जाके उसके साथ जो मुल्ज़मान ने हमारी तफ्तीश के दौरान कन्फेस किया है उसमें ये इन्होंने लड़की के साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद
इनमें एक मुलज़म है मुबीन उर्फ अली रज़ा, ठीक है, जो आइस का ज़रा ज़्यादा एडिक्ट है बाकी सब की निस्बत। ठीक है, तो ज़्यादा है सारे है addict सारे हैं। एडिक्ट ही हैं। ठीक है, उसकी सुई अट जाती है इस बात पे कि ये लड़की काला जादू करती है और मेरी वालदा की डेथ काले जादू से हुई थी। वो वहाँ पे ये सारी महफिल छोड़ता है, बाहर आता है, बाहर से आके वो अपने घर से एक छुरी लेके जाता है जो बकरा ज़िबा करने वाली छुरी होती है। फिर उस लड़की को ये जिस घर में ये उसके साथ ज़्यादती कर रहे थे वहाँ पे ज़िबा करने की कोशिश करता है। जो घर का मालिक होता है वो इसे कहता है कि नहीं, इधर नहीं, साथ कब्रिस्तान है, वहाँ पे ले जाते हैं। फिर ये 3 मुलजमान वहाँ से इसे कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं। ठीक है, कब्रिस्तान में ले जाने के बाद वहाँ पे एक कब्रिस्तान के अंदर दरबार है गुलाब शाह। दरबार के पास एक कोना ये खाली समझते हैं या जिधर सन्नाटा होता है, कब्रिस्तान का एंड है वहाँ पे। उधर उस लड़की को लटा के उसकी टांगें पकड़ के गला काट देते हैं। गला काटने के बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और ऐसे ही हमें इस तफ्तीश का आगाज़ बिल्कुल एक ब्लाइंड डेड बॉडी से शुरू करते हैं और फिर मुलजमान ट्रेस हो जाते हैं। फिर मुलजमान के ट्रेस होने के बाद हम इसके वर्सा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीछे एक चेन चलना शुरू हो जाती है मुलजमान से कि ये लड़की कौन थी, आप किधर से इसे लेके आए हैं। हमें लड़की के वर्सा मिल जाते हैं। वो वर्सा के मिलने के बाद हमें क्लियर होता है कि इस लड़की का नाम नगीना है, जिसकी एज 16-17 साल है। वालिद इसका हाफ मेंटल अब नॉर्मल टाइप है। वालदा इनकी छोड़ के कहीं और जा चुकी है और ये 4 बहनें हैं जो अपनी दादी की ज़ेर कफ़ालत हैं। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो मुलजमान अब पकड़े गए हैं उन्होंने क्या एतराफ़ किया है कि 5 ने ज़्यादती की, इज्तमाही ज़्यादती की? जो मुलजमान का एतराफ़ है उसमें 4 मुलजमान ये एतराफ़ करते हैं कि हमने इसके साथ ज़्यादती की है। बाकी पोस्ट कोई मेडिकल इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स हमें मसूल हुई हैं। अभी PFSA और बाकी जो मुफस्सल रिपोर्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं। इंशाल्लाह उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और जो इनिशियल रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ज़्यादती ज़ाहिर होती है? हाँ, उसमें डॉक्टर ने ये शुबा ज़ाहिर किया है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लड़की ख़ुद भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे जिस्म फरोशी का कारोबार होता था, तो ख़ुद भी मंशियात का इस्तेमाल करती थी, एडिक्ट थी? शेख साहब बज़ाहिर तो उसकी जो बॉडी देख के हमें लग रहा था कि लड़की एडिक्ट है। ठीक है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या जब उसकी डेथ हुई है तब उसने कोई नशा किया हुआ था कि नहीं। तो ये राय उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कायम की जाएगी कि अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका कोई नशा साबित होता है तो फिर इसका मतलब कि वो पहले करती थी। ठीक है। मुर्तज़ा साहब, 302 की दफ़ात के तहत तो पर्चा पहले ही दर्ज हुआ था पुलिस की मुद्दत में। अब इसमें कौन कौन सी दफ़ात जो हैं वो इजाद होंगी और कितना स्ट्रॉन्ग केस होगा? मतलब इसमें इज्तमाही ज़्यादती की दफ़ात भी जो है होंगी, क्या मुलजमान भी उस पर नामज़द हो जाएंगे, क्या कुछ होगा इसमें? सर, जो 302 की तफ्तीश है वो तो थाना के लेवल पे की जाती है, लेकिन जब उसमें कोई सेक्सुअल ऑफेंस ऐड हो जाए तो फिर हमारे वो अलग से जो यूनिट है SSOIU तफ्तीश उनके पास चली जाती है। तो इसमें गैंग रेप का जो आंसर है वो शामिल है, उसकी सेक्शन इसमें ऐड होगी और उसके बाद तफ्तीश आगे फर्दर। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अब ये बताइएगा कि जो लड़की थी नगीना, गालबन उसका नाम था, मकतूला का, जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी, काम करती थी, लवाहकीन को पता था। दादी इस बात से इनकारी है, वो कहती है कि घर से वो ज़कात लेने के लिए गई थी, तो उसे नहीं पता कि वो ऐसा कोई कारोबार करती थी या नशा भी करती थी। शेख साहब, इसमें ऐसे है कि ये एक ना बड़े लो लेवल की फैमिली है, जो गुर्बत की लकीर से कह लें कि नीचे रहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर आपको झुग्गियों में नज़र आते हैं। इसकी फैमिली उन लोगों पे मुश्तमिल है और वो ज़ाहिर है फिर अपने मुंह से तो कोई बंदा अपना ऐसा इतराफ़ नहीं कर सकता। तो ज़हनी तौर पे जो है वो जो मुलजमान हैं उनका क्या कहना है कि जो इब्तदाई बयान उन्होंने क्या दिया है कि ज़हनी तौर पे वो ठीक थी, उनको क्या लगता था कि एडिक्ट थी या उनके साथ ही उसने कोई नशा किया था? मुलजमान अभी इस हवाले से ना हम तफ्तीश में क्लियर नहीं है कि उसने नशा किया था या नहीं। वो बाकी अभी ये मुलजमान सारे मुकम्मल हुए हैं
आज के दिन में गिरफ़्तार हुए हैं, तो अभी इनकी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये तफ्तीश के दौरान क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल जी, इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है, लेकिन बागवानपुरा इन्वेस्टिगेशन ने एक अच्छा काम किया कि कैंट डिवीज़न में पिछले एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन 5 ख़वातीन की डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली थी मुख्तलिफ़ थानों में। लेकिन बागवानपुरा में ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें 15-16 साल की लड़की को गला काट कर कत्ल किया गया। ना उसकी शनाख्त हो पा रही थी और ना ही उसके मुल्ज़मान का कुछ पता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वो मुल्ज़मान ना सिर्फ गिरफ़्तार किए बल्कि उसकी शनाख्त भी कर ली, लड़की का किस घराने से ताल्लुक़ है, वजह अनाथ क्या थी, कत्ल होने की वजह क्या थी, तमाम तफसीलात जो हैं वो हमने आपको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागवानपुरा जो हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाई। नशा एक लानत है और नशा करने वाले लोग भूल जाते हैं तमाम रिश्तों को भी, और इस तरह से जो घिनौना काम उन्होंने किया, पहले गैंग रेप किया, तमाम के तमाम लोग जो है वो मंशियात के आदी हैं। फिर उसके बाद उस लड़की को कब्रिस्तान में ले जा के उसका गला काट दिया और उसकी लाश को वहीं फेंक कर फ़रार हो गए। पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें ये भी एक तासुर आ रहा है कि शायद कोई जादू करने का एलिमेंट इसमें शामिल है, कि कोई काला जादू करने का महारत रखती थी या वो सीख रही थी। ये तमाम चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जाके सामने आएंगी। कत्ल और गैंग रेप की वारदात के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन ख़वातीन के साथ गैंग रेप की वारदातें और उसके बाद कत्ल कर देना, इस हवाले से पुलिस हुकाम क्या कुछ कहते हैं, किस तरह के नए कवानीन के तहत इस पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये पुलिस हुकाम की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई सेंसिटिव मौजू को पिक किया और हमें मौका दिया कि हम इस पे आपके चैनल के थ्रू आवाम को बता सकें कि किस किस्म का ये केस था और कितना चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। देखें, जब हम क्राइम को स्टडी करते हैं तो हमेशा से जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो मोस्ट सीनियस ऑफेंसेस में आता है, क्योंकि इसमें मर्डर हो जाते हैं, इसमें अटैम्प्ट टू मर्डर होती है, ज़रर के केसेस होते हैं, और फाइनली जो सबसे टॉप का या क्लाइमैक्स का क्राइम है वो है मर्डर। हमें ये वाली जब डेड बॉडी मिलती है तो यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई एक चैलेंजिंग केस था। रीज़न बीइंग कि एक डेड बॉडी मिली है और अननोन है उसमें जो अक्यूज़ड हैं, तो ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस हम रजिस्टर करते हैं। उन दिनों में ये भी हो रहा था कि फ्रिक्वेंटली हमें बड़ी ऐसी डेड बॉडीज़ मिल रही थी जो कि अनट्रेस थी, अनआइडेंटिफाइड थी। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये था कि जब हमने मौके को विज़िट किया है, वहाँ पर हमारी टीम्स गई हैं, उन्होंने उसको सिक्योर किया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मौके से था वो कलेक्ट किया, PFSA की टीम्स आई, उन्होंने अपना एविडेंस कलेक्ट किया और इस डेड बॉडी की सबसे पहले ज़रूरी था कि आइडेंटिफिकेशन हम करवाते। हमने वहाँ पे अपना सारा ही काम पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था। CCTV कैमरास को ढूंढना शुरू किया, उस बच्ची के वेयर अबाउट्स पता किए, करीबी CCTV कैमरे चेक किए, जियो फेंसिंग भी करवाई और फिर इस डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल में मूव किया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो, हमें पता चले कि इसका मर्डर कॉज ऑफ डेथ है क्या, मर्डर किस तरह से हुआ है, क्या इस बच्ची के साथ कोई जिनसी इस्तेसाल तो नहीं हुआ, कोई इसको रेप तो नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास चलती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाती है, तो हमें पता चलता है बच्ची के साथ चूँकि ज़्यादती भी हुई थी और उसके बाद इसका मर्डर किया गया। अब हमने जब इसको ट्रेस किया, वेयर अबाउट्स इसके जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पर हम गए, वहाँ से चेक किया कि कौन लोग थे जिनके साथ ये बच्ची गई थी। इसमें एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ हमारे सामने आई वो ये भी थी कि ये भी एडिक्ट थे, अक्यूज़ भी एडिक्ट थे। वो इस लेवल तक एडिक्शन में चले गए थे कि हेलुसिनेशंस जब होती हैं बंदे को तो वो बिल्कुल कंट्रोल अपना लूज़ कर जाता है और वो फिर उसने छुरी लेकर, हमारा जो मेन अक्यूज़ है, उसने इसके गले पर फेरी जिससे इसकी डेथ हुई। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है वो है सोशल ईवल्स, जो माशरे की बुराइयां हैं, जिनको अगर तो कंट्रोल कर लिया जाए, तरबियत बच्चों की ऐसी की जाए वालिदैन के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू और माशरे के थ्रू, जिससे वो इस किस्म के ईवल्स में ना पड़ें, तो बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। बट ये केस बिल्कुल ही उसके अदर साइड पे चला जाता है। बच्ची का जहाँ से बिलोंग करना होता है वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो अक्सर लड़कों के साथ उसका जाना होता था और फिर ड्रग्स लेना, ड्रग्स भी बंदा एकदम से स्टार्ट नहीं कर देता, वो यूज़ टू होता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का एडिक्ट बन जाता है, तो ये उसमें भी आ जाते हैं। तो ये दोनों मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुआशरती बुराइयाँ,
इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बुनियादी किरदार तो वालिदैन का होता है, उसके बाद जिन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जाके तालीम हासिल करते हैं वो होता है, और फिर जो माशरा है यानी हमसाए हैं, जो वो कॉलोनी है, वहाँ के लोगों का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। यकीनन उन्हें पुलिस के साथ मिलकर चलना होता है, और पुलिस का काम है कि इन सारी माशरती बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए अपना बड़ा ही फोर्सफुल रोल प्ले करे। तो इसमें ये सारी तीनों चीज़ें सामने आई, और जो पोस्टमार्टम में हमें पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है, फिर उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया गया है, फिर उसको नारकोटिक्स भी दी गई हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। पुलिस ने बिल्कुल इनकी अरेस्ट जो हैं वो कर ली हैं, और अब इनकी जो तफ्तीश है वो उसमें एडमिट भी इन्होंने किया है, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि इनका एक मजबूत चालान बना के हम अदालत में पेश करेंगे। भगवानपुरा के कब्रिस्तान से नामरूम लड़की की मिलने वाली लाश के हवाले से हमने आपको प्रोग्राम में तमाम तफसीलात बताईं। लवाकिन जो अब तलाश हो चुके हैं उनका क्या कहना था, और पुलिस ने किस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये भी हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया। अब हम मंशियात के आदी लोग जो नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, माहिर नफ्सियात की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। जो मनशियात के पेशेंट हैं या मनशियात के जो आदी अफराद हैं जो बीमारी के शिकार हैं वो मर्डर्स करने लगे, दूसरे को मारने जानलेवा हमले करने लगे। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो हमारे माशरे में वैसे अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम लोग वैसे हाइपर ज़्यादा हैं। दूसरा जो नशा करने वाले लोग हैं ये बेसिकली आदत नहीं है, ये बेसिकली एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है, पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर पे वो अफराद जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो किसी भी किस्म का नशा कर रहे हैं, जब उनको वो नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि वो हर अनफेयर मीन यूज़ करते हैं उस नशे को हासिल करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी क्रेविंग हो रही होती है, उनकी बॉडी में इतनी शदीद पेन हो रही होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि वो नशा हासिल करने के लिए चोरियाँ भी कर रहे हैं, लोगों के गले भी काट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक बहुत गलत चीज़ है हमारे माशरे में। सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका तदारुक कैसे करें, हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक मिथ है लोगों के दरमियान में कि जो नशे के तो एक बुरी आदत है, बुरी लत है, बेटी की शादी करते ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। इसके लिए स्पेशली डिफरेंट रिहैब्स बने हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम है जो कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स पे मुश्तमिल है, जो कि मुकम्मल टेक केयर करती है और उसको अपने इंडोर में ट्रीटमेंट करते हैं और उनका इलाज मुमकिन होता है। होता क्या है कि लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह से हमने इलाज करवाया, फ़लाँ जगह से इलाज करवाया और हमारा बच्चा तो फिर एडिक्शन का शिकार हो गया। बेसिकली बीमारी रिलैप्स होने की बीमारी है, इसमें रिलैप्स होते हैं। लेकिन जहाँ पे भी एक प्रोफेशनल टीम होगी जो कि प्रॉपर इलाज कर रही होगी, जो कि प्रॉपर गाइडलाइन दे रही होगी, फैमिली काउंसलिंग भी कर रही होगी, बच्चे की भी काउंसलिंग कर रही होगी या किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग कर रही होगी, वहाँ पे रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 24 घंटे अवेलेबिलिटी होती है कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है उनको देखा जाता है कि उनकी बीपी चेक किया जाता है, उनकी शुगर चेक की जाती है, हर चीज़ को चेक किया जाता है। तो जहाँ प्रोफेशनल टीम होती है वहाँ रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं और वहाँ पे गाइडलाइन प्रॉपर होती है, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं। तो अगर प्रॉपर इलाज करवाया जाए तो इसका तर मुमकिन और इलाज होता है और लोगों को असेस नहीं कर पाते इस चीज़ को। ज़रूरत इस समझ के लोगों को गाइडलाइन दी जाए कि कौन से मनशियात बेसिकली है क्या, किस तरह ये इम्पेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग पे और किस तरह उसकी फ़िज़िकल हेल्थ डैमेज होती है, किस तरह साइकोलॉजिकल हेल्थ डैमेज होती है। जब वो असेस कर लेते हैं इस चीज़ को तो तब देखें कि कौन सा रिहैब सेंटर है जहाँ पे प्रॉपर इलाज होता है, जहाँ पे अच्छा इलाज होता है, तो वहाँ इलाज करें तो बेहतर तरफ हालात बेहतर हो जाते हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, उनके जो रिस्पॉन्स हैं ये बिहेवियर्स भी डिफरेंट है, लेकिन जो कॉमन बिहेवियर है ना वो स्ट्रबननेस है, ज़िद्दी, अपनी बात पे अड़ जाना, उसकी बात अगर नहीं माने तो गुस्सा कर जाना, आइसोलेट हो जाना, तन्हाई पसंद हो जाते हैं। बिलफर्ज अगर ऐसे इंसान के साथ आपकी बहस शुरू हो गई है या आपसे बातचीत करे और आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो ड्रग्स लेता है तो आप देखिएगा एग्रेसिव हो जाएगा,
वो अपनी बात मनवाने के लिए एकदम से हाथापाई पे उतर आएगा और चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देगा। इस तरह के जो बिहेवियर जब होने लगते हैं समझ जाएं कि समथिंग गोइंग रॉन्ग और ना कोई ड्रग वो ले रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, जो आइस क्रिस्टल है वो बहुत कॉमन होगी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इसके आइस क्रिस्टल जो होता है उसका थोड़ा सा माइंड ये होता है कि वो माइंड को अलर्ट कर देता है और बच्चे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हम कई घंटे बैठ कर पढ़ लेंगे, हमारा कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाएगा, हम अच्छे असाइनमेंट्स कर लेंगे, ग्रेड्स के चक्कर में पड़ गए। एक रेस लगी हुई ना कि हमारे ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, हमारा CGPA अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ ने लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को खासतौर पर आइस क्रिस्टल लेने पर मजबूर किया। उसमें सबसे पहले तो ये जो स्कूल लेवल पे आकर एक बाकायदा प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जहाँ बच्चों को बताया जाए ड्रग्स है क्या और किस तरह इम्पेक्ट करती है, किस तरह आपकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ को डैमेज करती है। बच्चों को जब शुरू से पता होगा सिगरेट इज़ अ गेटवे। अगर आपके सिगरेट पीना शुरू कर दी है, ठीक है, आपके बच्चे ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जहाँ स्मोकिंग हो रही होगी। उस ग्रुप में एक बच्चा चर्च पी रहा होगा, फिर उसको कहेगा नहीं तुम ये फ्लेवर ट्राई करो, इसमें तुम ज़्यादा इन्जॉय करोगे। वो चर्च का ग्रुप बन गया, फिर चर्च के ग्रुप में एक कोई आइस क्रिस्टल ले रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। सिगरेट इज़ अ गेटवे। जब बच्चा सिगरेट शुरू कर देता है तो पेरेंट्स के लिए एक अलार्म है, उनको उस पर सोचना चाहिए कि क्यों शुरू की है और उसको रोकना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नशियात की इतनी अवेलेबिलिटी क्यों है, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि नशियात की अवेलेबिलिटी क्यों है इतनी ज़्यादा, उसकी रोकथाम भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी रोकथाम होगी तभी पुलिस कुछ कर सकेगी। सबसे पहले तो देखें जी, इसको रोका जाएगा, ये बिल्कुल कॉमन हर जगह ना मिल सके, उसको रोका जाए। अगर कोई बासा अफराद इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए। थोड़ा सा पहले तो बैलेंस रखें कि जी ना हो, और पुलिस एफर्ट कर रही है तो प्लीज़ ज़रूर करे। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बगैर हम नशियात पर काबू नहीं पा सकते अनटिल के डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब जो है वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो किसी ड्रग्स का शिकार हो, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट को हाई लेवल पे इस पे काम करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत सारे केसेस आते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं प्राइवेसी को मेंटेन रखें। एक केस आया था जो कि बहुत वेल ऑफ था और वो बड़ी ज़मीनों का मालिक था वो बच्चा, और उसके फादर की डेथ के बाद सारा वो टेक केयर करना शुरू किया अपनी ज़मीनों को। तो उसने हुआ क्या कि वो गलत आप सोचते मनशियात की बीमारी में पड़ गया और उसके बाद उसने वो ज़मीनें बेची शुरू कर दी, क्राइसिस आ गया, बहनों के मामला काफ़ी ख़राब हुए। इस तरह के कई केसेस होते हैं जो फाइनेंशियली हिट से लेकर गुस्से में बहुत सारे अमल किए होते हैं उन्होंने। सम टाइम साइकोसिस आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं जो मुसलसल नशियात का इस्तेमाल करते हैं तो साइकोसिस हो जाते हैं उनको, कुछ सुसाइडल थाट्स भी आना शुरू होते हैं, सुसाइड की कोशिश भी कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ केसेस होते हैं। ह्यूमन माइंड पे नशियात ये नहीं देखती कि ये औरत है या मर्द है, उसने एक ही तरह काम करना है, ठीक है। जहाँ डिज़ास्टर मर्दों के साथ होता है वही डिज़ास्टर औरतों के साथ भी होता है। औरतों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो मिसयूज़ बहुत होती है, ठीक है। उनका नशियात के चक्कर में लोग उनको ट्रैप करते हैं, उनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं, कुछ बेशुमार चीज़ें होती हैं, उनको रेप हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कॉमन है, मर्द और औरत दोनों में एग्रेशन तो दोनों में कॉमन है, वो गुस्सा ज़्यादा होता है लोगों को। अच्छा देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है, मैंने तो अपनी 10 साल से मैं काउंसलिंग और इस फील्ड में हूँ, मैंने नहीं, बहुत कम है कि लोग खुद ही इस चीज़ के साथ अपने आप को इससे गेट रिड ऑफ कर लें। बहुत मुश्किल, नामुमकिन हद तक है। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई भी ड्रग इनटेक कर चुके होते हैं तो बॉडी उसके साथ जलन हो जाती है, और जब आप जब खुद छोड़ रहे होते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है। सम टाइम डायरिया हो जाता है, वॉमिट्स हो जाती हैं, बीपी शुगर फ्लक्चुएट कर जाता है, हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर जाती है, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश तो ये करें कि आप एडमिट हो जाएं। अगर आप खुद भी कोशिश करें कि जी मैंने स्टार्ट कर ली है, इसको मैंने रोकना है, तो आप एक ही है कि आप उसको थोड़े से के लिए छोड़ कर देख लें। अगर आप उसको खुद असेस कर सकते हैं, अपने वाइटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो इट्स फाइन। अगर नहीं होते, जो कि नहीं होते, तो फिर आप एडमिट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स को ये कन्वे करने के लिए कि इसका मुकम्मल एक ट्रीटमेंट प्लान है।
होता है कि इसका एक ट्रीटमेंट होता है तकरीबन 100 डेज से 120 डेज़ का ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसमें मुकम्मल तौर पे फिज़िकली और साइकोलॉजिकल तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है पेशेंट को। होता है क्या है कि पेरेंट्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत के इसमें कुछ ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो करते क्या है कि पेरेंट्स वो 2 माह के इलाज के बाद 60 डेज़ के बाद वो कहते हैं ठीक है जी इलाज मुकम्मल हो गया, इसको हम बाहर निकाल दें, बस ठीक हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं होता, कम से कम 3 से 4 माह में इसका इलाज मुकम्मल होता है। तो पेरेंट्स को हमें ये चैलेंज करना, पेरेंट्स को ये समझाना कि इसका इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, सिर्फ बॉडी डिटॉक्स हुई है, अभी साइकोलॉजिकल तौर पे वो हील नहीं हुआ है, साइकोलॉजिकल तौर पर बेहतर नहीं हुआ, तो उसका इस तरह के चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं। शुरू में जो पेशेंट होते हैं और तो हमारे पास बड़ी प्रोफेशनल टीम है, लेकिन लोग पेशेंट जो हैं वो गुस्सा भी ज़ाहिर करते हैं, गुस्से का इजहार ज़्यादा करते हैं, कोऑपरेट नहीं शुरू में कर रहे होते और बात सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट होता है तो चीज़ें की तरफ बेहतर आना शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है ना, फैमिली बड़ी मैटर करती है, जो फैमिली की सपोर्ट के बिना हम ये कर नहीं पाते, तो फैमिली अगर सपोर्टिव रहे तो इलाज बहुत जल्दी और अच्छा मुमकिन होता है। बहुत सारी ड्रग्स आजकल कॉमन हैं और चर्स है, हैश है, आइस क्रिस्टल है, हेरोइन है, कोकीन है, डिफरेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स है आइस क्रिस्टल, हैश और भंग, ये एक ऐसी नशे हैं जो कि पेशेंट में साइकोसिस ले आते हैं। साइकोसिस मीन्स हेलुसिनेशंस हो जाना और आप एक अजीब सी दुनिया में चले जाते हैं और आप एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप समझेंगे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं अजीब जिस्म के, आप आम ज़ुबान में कहेंगे पागलपन की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो हैं जो नशे, उनको देखने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को ज़रूर देखना है। और आजकल आइस क्रिस्टल के बहुत ज़्यादा है और जो इस पर तो पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, बच्चा इतना ओवर एक्टिव है तो क्यों है, और बच्चा इतना जाग रहा है तो क्यों जाग रहा है, बच्चा आइसोलेट क्यों हो रहा है और बच्चा हाइपर क्यों हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स हैं जिसमें पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस तरह समझ जाएं कि ये अलार्म हो गया और हमें इसको चेक असेस करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों की रूटीन को ज़रूर असेस करें, और जब बच्चे बेतहाशा पैसे मांगने शुरू हो जाएं तो आप देखें ज़रूर, चेक एंड बैलेंस रखें। बच्चा आइसोलेट क्यों हो रहा है ये भी जहन में रखें कि बच्चा क्यों तन्हाई में रह रहा है, उसके मोबाइल चेक करें, उसकी सराउंडिंग ज़रूर चेक करें। दोस्त कैसे हैं वो बहुत रोल प्ले करता है। ड्रग्स में आप बहुत सारे केसेस में देखने में आया कि जो दोस्त हैं उनकी वजह से ड्रग्स में बच्चा लगा, तो ये देखने की ज़रूरत है। ये था आज का जुर्म अंजाम जो ब्लाइंड मर्डर और गैंग रेप की दफात पर मुश्तमिल था। पुलिस ने इस पूरे मुकदमे को, इस केस को सॉल्व तो कर लिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो घिनौना काम मुल्ज़मान ने किया, पुलिस उनको करार वाकई सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।